Hello, first year. Numericals on simple harmonic motion. First numerical. The periodic time of a body executing simple harmonic motion is 3 seconds. Time period T दिया है 3 seconds. After how much interval from time T is equal to 0 will its displacement be half of its amplitude? Sin 30 half ये दिया हुआ है. तो टाइम पीरियड इसका है 3 सेकेंड. We know that the displacement equation of simple harmonic motion is y is equal to a sin omega t. इसको आप याद रखिए. डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज y is equal to a sin omega t, यानी a sin ओमेगा की जगह 2 pi by t into t. Suppose t dash is the time interval after time t is equal to 0 when displacement is half of the amplitude. यानी जब मान लो टाइम जब हो जाता है टी डैस्ट, जब टाइम टी हो जाता है टी डैस्ट, तो उस समय डिस्प्लेसमेंट होता है हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड. इस कंडीशन को लगा दें आप इसमें, तो वाई की जगह ये वाई टू ए साइन ओमेगा 2 पाई वाई टी एंड टी की जगह टी डैस्ट. तो साइन 2 पाई टी डैस्ट अपॉन टी, ये ए कैंसिल हो गया हाफ, तो इससे साइन 30, साइन इनवर्स हाफ तो साइन 30, तो 2 पाई टी डेस्ट अपॉन टी इज 30, सो टी डेस्ट इज 30 टी अपॉन 2 पाई, 30 टी अपॉन 2 पाई, 33 टाइम पीरियड 3 सेकेंड दिया है, 0.2 पाई जगह 180 1/4, तो टाइम आया टी डेस्ट इज 0.25 second. 0.25 second. Now next numerical. A particle executes simple harmonic motion with an amplitude of 6 centimeter and time period 6 seconds. How much time it will take to move from maximum displacement position to half the amplitude? यानी यहाँ से यहाँ तक एम्पलीट्यूड, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा. If time is counted from the maximum displacement position, then equation of simple harmonic motion ये होता है y is equal to a sin omega t plus pi by 2 या y is equal to a cos omega t. इसको आप याद रखें अगर टाइम काउंट होता है फ्रॉम मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट. तो इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज y is equal to a cos omega t. So y is equal to a cos 2 pi t by t. According to the condition, इन्होंने क्या कहा है, कितना टाइम लेगा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पोजीशन टू हाफ द एम्पलीट्यूड. तो y is equal to a by 2 a cos 2 pi t by t. So cos 2 pi t by t is just half. This is cos 60 cos pi by 3 2 pi t by pi by 3. So t is t by 6 यानी 1. तो टाइम लगा 1 सेकेंड. टाइम लगा 1 सेकेंड. Now third numerical. A particle executing simple harmonic motion has time period 1 second and amplitude 10 centimeter. Amplitude 10 centimeter and time period t 1 second. Find the maximum speed यानी u maximum and speed at time 1/12 second, assuming that motion starts from rest. यानी रेस्ट का मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पोजीशन एट टाइम t इज इक्वल टू 0. सो स्पीड u होती है ओमेगा रूट ए स्क्वायर. ये याद रखें, पार्टिकल की स्पीड होती है ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. सो u मैक्सिमम होगा ओमेगा 2 पाई बाई टी, इसको रखिए. तो एम्पलीट्यूड 10 सेंटीमीटर नहीं 0.1 मीटर,
2π/t की जगह 1, जैसे 0.628, तो मैक्सिमम वेलोसिटी हो गई 0.628. नाउ टाइम इज काउंटेड फ्रॉम मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, v इज इक्वल टू 0, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट. तो इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन हो जाएगा y इज इक्वल टू a sin omega t plus π/2 which is a cos omega t. Hence speed u is equal to dy by dt. dy by dt of y is a cos omega t, तो a ओमेगा sin omega t. u हो गया a ओमेगा यहाँ आ चुका है, देखिए 0.628 sin 2π/t, sin 2π t की जगह 1, टाइम कितना है 1/12 सेकेंड, दिस is π/6 which is 30. This is just u is 0.314 meter per second. Now next numerical, two particles execute simple harmonic motion of same amplitude and frequency along the same straight line. They cross one another when going in opposite directions. What is the phase difference between them when their displacements are half of their amplitudes? याद रहे, the general equation of simple harmonic motion is y is equal to a sin omega t plus phi. अब क्रॉस करते हैं, फेज डिफरेंस पता करना, when the displacement are half of the amplitude, when y is equal to a/2, जब डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड का आधा है, देन यहाँ रख दीजिए, तो a/2 इज a sin omega t plus phi. तो sin omega t plus phi इज हाफ, दिस इज omega t plus phi इज 30 और 180 डिग्री. omega t plus phi इज 30 डिग्री और 150 डिग्री. तो इसलिए फेस ऑफ वन पार्टिकल इज 30 डिग्री एंड फेस ऑफ अनदर पार्टिकल इज 150 डिग्री. सो फेज डिफरेंस जो कि पूछा है, जो फेज डिफरेंस पूछा है दोनों में होगा 150 minus 30 which is 120 degree. Now next numerical, the displacement equation for a particle executing simple harmonic motion is y is 0.2 sin 50 pi t plus 0.01. Calculate the amplitude, time period, maximum velocity and displacement at the start of motion. देखिए y इज इक्वल टू 0.2 साइन 50 पाई, 50 अंदर कर दिया तो 50 पाई टी प्लस 0.5 पाई. सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन होती है जनरल y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस पाई. दोनों को कंपेयर किया तो a इज इक्वल टू 0.2 मीटर, ओमेगा इज 50 पाई, इससे 2π/t इज 50 पाई, तो t आया 0.04 सेकेंड. टाइम पीरियड भी आ गया, एम्पलीट्यूड भी आ गया, और मैक्सिमम वेलोसिटी होती है ए ओमेगा, तो ए की जगह 0.2, ओमेगा की जगह 50 पाई, दिस इज 31.4 मीटर पर सेकेंड. एंड डिस्प्लेसमेंट एट द स्टार्ट ऑफ मोशन, तो डिस्प्लेसमेंट एट टाइम t इज इक्वल टू 0, ये होगा बाई 0.2 साइन 50 पाई, t की जगह 0, तो 0.2 sin π/2, तो y is equal to 0.2. Very simple. Now next numerical, sixth, a particle is performing simple harmonic motion. Its velocities at distances 4 semi and 6 centimeter from mean position are 3 and 2. Calculate its time period. वेलोसिटी का फार्मूला u होता है ओमेगा रूट a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. u इज ओमेगा रूट a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ओमेगा की जगह हमने लिख दिया 2π/t रूट a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. अब रखिए यहाँ पर कि 4 सेंटीमीटर पर 3 वेलोसिटी है, तो और 6 सेंटीमीटर पर वेलोसिटी है 2. तो मैंने यहाँ रखा 4 सेंटीमीटर पर 3, तो 3 इज इक्वल टू 2π/t, यहाँ से रखा 3 इज इक्वल टू 2π/t रूट a स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर. इसको हम सॉल्व कर लें. 3 इज इक्वल टू 2π/t रूट a स्क्वायर माइनस 16, तो यहाँ इधर ले गए 3t इज 2π रूट a स्क्वायर माइनस 16. अगली कंडीशन रखी
कि 6 सेंटीमीटर पर 2 है, 6 सेंटीमीटर पर 2 है, तो 2 इज इक्वल टू 2π/t रूट ए स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, 2π/t रूट ए स्क्वायर 36, तो 2t इज 2π रूट ए स्क्वायर माइनस 36। ये दो आ गई कंडीशन। अब हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। इन दोनों को स्क्वायर किया, सब्ट्रैक्ट किया, 3t होल स्क्वायर माइनस 2t होल स्क्वायर इज 4π स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 16 माइनस 4π स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 36। तो 90 स्क्वायर 40 स्क्वायर 4π स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 16 माइनस ए स्क्वायर प्लस 36। ये ए स्क्वायर कट गया, 36 16 20, तो 5t स्क्वायर इज 4π स्क्वायर इंटू 20, t स्क्वायर इज 16π स्क्वायर, तो t इज इक्वल टू 4π सेकेंड। ये आ गया टाइम पीरियड।